जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय हनुमान जी, शुक्राना हनुमान जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय प्यारी संगत जी, जय जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ गुरु जी डिवाइन वर्ड चैनल ते। आंटी अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना और प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जो अमृत वेला सत्संग सुन रही है। बाबा जी उन्होंने ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 4:08 AM। दिन हैगा आ अज बुधवार और तरीक हैगी आ 18 जून 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दर्शन कराए परमात्मा गुरुद्वारे दे। गुरुद्वारा तलन साहब उत्थे मेरे पुੱਤ ਦੀ सुखना लहाई। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ आ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। संगत जी, गुरु पा ने मेरिया सुखना लहा दित्तियां आ। 4 सुखना लित गईयां आ। शिव दियां, वैष्णो माता दी रह गई आ, ਤਾਂ गोल्डन टैंपल दी रह गई, बाबा बुੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ रह गई आ। संगत जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ शिव, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ शिव ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 2 ਅੰਕਲ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਊਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰੱਖਤ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਟੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ, ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਰੱਖਣ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੰਕਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਲਈਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਹੁਣ ਸੁੱਖਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੱਤ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਣੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਸੰਕਟ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੀਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਓ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਈਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਈਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी, शुकराना आंटी अंकल जी, शुकराना गुरु पा, शुकराना मेरी देवी माँ, शुकराना मेरे हनुमान जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी को गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। संगत जी, आज मंगलवार का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने हमेशा कहा है मंगलवार को शुक्राना सत्संग करने से जीवन में मंगल ही मंगल होगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी ही कृपा से गुरुपा हम सत्संग शेयर कर पाते हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है मालिक हम कुछ भी कर सके। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना की दात बख्शने का, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का, शुक्राना सत्संग सुनाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कई दिनों से शनिवार से करना चाह रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ कीजिए मालिक मेरे दाता। संगत जी, शनिवार को मेरे घर में बेल का पेड़ है और मैं वहाँ पे दिया जलाती हूँ। मेरा घर का एरिया बड़ा है, ज़मीनें काफ़ी है। संगत जी, सब उसमें उलझी हुई है। मेरे गुरु महाराज को मालिक को पता है, लेकिन हम इसी घर में रहते हैं। पेड़ पौधे हैं संगत जी और ज़मीन खाली है, तो मैं बेल पेड़ भी है तो हम वहाँ डेली, जब से शिव महापुराण सुनती थी 2-3 साल से हो गए, तब से मैं कोशिश करती हूँ शाम में जो जलाने का संगत जी। तो मैं वहाँ दिया जलाने गई तो जैसे ही मैंने दिया जलाया संगत जी, मुझे सांप का पूँछ दिखा। थोड़ा सा मैं डरी, फिर मैंने अपने आप को संभाला, गुरु महाराज जी का गुरु मंत्र जाप किया। और बेल का पेड़ काफ़ी पुराना है, 50 साल से ज़्यादा संगत जी, 30 साल तो लगभग मेरी शादी को हो रहे हैं। मेरे पति अंकल बता रहे हैं कि हम वो भी नहीं जानते उस पेड़ को। तो संगत जी, वो मोटा काफ़ी है, तो पीछे साइड सांप और पीछे साइड था, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ दूसरा जानवर है। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और उनके दर्शन करनी चाहिए कि ये मुंह देखना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी तो हमारे सब मन की बात जानते हैं और सामने ही आके वो फिर चले गए कि मेरी बेटी डर जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे भोले भंडारी, आपने मुझे सांप के रूप में दर्शन दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, फिर मैं सोमवार के दिन कल, गुरु महाराज मेरे मालिक मेरे दाता, मैं शिवालय क्यों नहीं आ पा रही हूँ। मैं सोमवार के दिन कल आलस कर गई। गुरु महाराज मुझे अमृत बेला की दात बख्शो गुरु महाराज, हम बहुत बेकार होते जा रहे हैं, हम बहुत लेट उठते हैं। इतना लेट गुरु महाराज, मुझे खुद भी ख़राब लगता है। 8-9 बजे उठने लगी हूँ। प्रभु मेरी गलतियों को सुधारो प्रभु, मैं लेट उठने के कारण शिवालय नहीं जा पाई, मुझे माफ़ करो गुरु महाराज। और संगत जी, जब नहाई वही के बाद एक साधु महाराज आए मेरे गेट पे, और बहुत पहले से ही कई एक सत्संग आते थे मुझे भी और मेरी बेटी को कि मैं शुद्ध साधु के रूप में दर्शन देने आऊँगा। और बहुत सारी संगतों के मुख से भी मैंने सुना है कि साधु के रूप में गुरु महाराज दर्शन देते हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने देखा गेट पे उनको, तो मुझे ऐसे मन में ख्याल आया कि कहीं गुरु महाराज तो नहीं है। मेरी बेटी से मैंने भी कहा, फिर मैं सोचती मैं क्या दूँ, ऐसे सोच रही हूँ संगत जी। जब से फिर मैं गई 10 रुपए लेके गेट पे गई, और अपने मन में भी चल रहा है कि आजकल साधु के भेष में और भी लोग आ जाते हैं, पता नहीं गुरु महाराज है कि कौन है, ऐसे ही मन में चल रहा है संगत जी। और मैं गई, गेट भी नहीं खोली, मैं अंदर से गेट की जाली से ही उनको पैसे पकड़ाई और उन्होंने बस इतना ही बोला। मैं उनके चेहरे को देखी, वो पसीने में तर थे इतनी गर्मी में, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और जैसे ही मैंने नोट जाली में से दिए तो उन्होंने बोला जय हो, इतना कह के चले गए। और मेरे मन में चलता रहा कि गुरु महाराज आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, तो कुछ साइन दो। और संगत जी, फिर मैं दोपहर में जब अपना मोबाइल पूजा पाठ के बाद देखा तो उसमें लिखा था गुरु महाराज के भेष में मैं साधु के रूप में मैं आऊँगा और मुझे ये चीज़ें देना। लेकिन मेरे गुरु महाराज, मैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मैं कुछ नहीं दे पाई, मुझे माफ़ करो। मैं बेवकूफ़ नादान, ना मैं अपने गुरु महाराज के चरणों की तरफ देखी, ना गेट खोला। मेरे मालिक मुझे क्षमा करो, आपने मुझे सदा साधु रूप में दर्शन दिया मालिक, मैं धन्य हो गई प्रभु।
मेरी नादानी के कारण मैं अच्छे से अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाई। क्षमा करो, आपने मुझे दर्शन दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे बाबा। और संगत जी, कल मेरी बेटी ने, जैसे कि पहले भी मैंने अपने देवर की तबीयत का सत्संग शेयर किया था कि अकाल मृत्यु का योग गुरु महाराज, और वो सत्संग गुरु महाराज की कृपा से शेयर भी हुआ था। संगत जी, मेरी बेटी को सपने में गुरु महाराज दिखाते हैं कि मेरे देवर पागल हो गए हैं संगत जी, और सबको परेशान कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। संगत जी, मेरे देवर अकेले रहते हैं और उनकी वाइफ भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो अकेले ही रहते हैं और उनको प्रॉब्लम भी है हाइड्रोसिल्स की, वो बीमारी बढ़ती जा रही। संगत जी, चुपचाप, बहुत ज़्यादा चुपचाप रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो हो सकता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता था। मेरे गुरु महाराज वो सब जान है, वो सपने में कटा दिए। मेरी बेटी को सपना दिखा के मालिक, हम तुरंत ही जैसे बेटी बताई, मैं जान गई प्रभु कि आपने ये होने वाला था और ये सपने में दिखा के कटा दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ही लोग परेशान होते, क्योंकि कोई नहीं यहाँ पे। हम ही, मैं, मेरा पति अंकल और बच्चे हैं। मेरे पति अंकल तो वैसे ही पहले से ही उनके ऊपर इतना वशीकरण है कि वो वैसे ही नहीं कुछ सुनते हैं, तो हम ही लोग परेशान होते। तो मेरे गुरु महाराज की कृपा से सपने में दिखा के सब काट दिया, उनका ये पागलपन होने से बचा लिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आया था कि तुझे, परसों की बात है, कि चोट लग सकती है। और गुरु महाराज में सोफा चटक रही, मैं समझ गई मेरे गुरु महाराज थोड़े में मेरा कष्ट काट दिए, चोट लगने से बचा दिया। और संगत जी, गुरु महाराज ने इसी तरह मेरे बेटे का कोई बड़ा कष्ट काटा, उसको भी आया था कि तेरे बेटे को बहुत बड़ी चोट सकती है, और वो बाथरूम से निकला अचानक से, बहुत तेज़ी से गिरा संगत जी, लेकिन इतना बड़ा कष्ट नहीं हुआ, थोड़े बहुत ही हल्के में पीठ में लगा और ठीक है हो गया वो, गुरु महाराज की कृपा से। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी बहुत मेहर है मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरी मालिक, मेरे दाता, मेरे बेटे के लिए बहुत सारा सत्संग देते हैं कि अकाल मृत्यु का योग है मेरे गुरु महाराज। मैंने पहले भी सत्संग में कहा है मालिक कि उसको बड़ी बीमारी होने का भी खतरा है, आपको ही बचाना है मालिक। उसको अभी 1 महीने पहले भी छाले निकले थे और फिर से छाले निकले हैं प्रभु। वो दवा लाया था, दवा पे विश्वास करता है मालिक, ठीक हो गया था, लेकिन मैंने जल प्रसाद भी आपका दिया था प्रभु, मुझे विश्वास है आपके जल प्रसाद से ठीक हुआ था मालिक। मेरे बाबा, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मैंने आज सुबह ज़बरदस्ती उसको आपका जल पिलाया। हे मालिक, उसका छाला ठीक कीजिए, दवा लेने जाने की नौबत ना आए मेरे परमात्मा, उसको बड़ी बीमारी से, बड़ी दुर्घटना से बचाइए प्रभु। आपका नाती है, आपको ही सब कुछ जो करना है मालिक, मेरी कोई हैसियत नहीं है प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में सरेंडर किया है मालिक। हे प्रभु परमात्मा, बेटी का रिश्ता भी आया है मालिक, प्रभु जो भी सही रहेगा वो आपको ही कराना है मालिक। आपको अनंतम शुक्राना है प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना है मालिक। एक अरदास है, मेरी नंद की बेटी का भी रिश्ता मेरी बेटी से पहले होना है प्रभु। मैं नहीं देख सकती प्रभु अपनी नंद को, क्योंकि मेरे नंदो ही नहीं है प्रभु, आप जानते हो सब कुछ। उनकी बेटी का भी रिश्ता जल्दी लगा दीजिए प्रभु, आपने जैसे मेरे बहन की बेटी का रिश्ता लगाया, आपको अनंतम शुक्राना। सब कुछ आपने ही करा प्रभु, आपकी कृपा से बहन की बेटी की सगाई होने वाली है प्रभु, उसी तरीके से मेरी नंद की भी बेटी का रिश्ता लगाओ। और प्रभु, ये जो भी रिश्ता आपकी नातिन के लिए आया है, अगर सही रहे तो भी आप वहाँ तक ले जाइए प्रभु। मेरे जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। ये मैं आज वेडनेसडे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे आजकल कभी कभी गुरु जी जो सत्संग है वो अमृत वेला के टाइम में भी करवाते हैं, लेकिन कल रात को भी मेरा सत्संग जो है वो मतलब वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग का
ट्यूसडे के लिए मेरा सत्संग मिस हो गया था, याद ही नहीं रही मुझे करने की। पहले याद थी, लेकिन फिर बाद में जब मैं सोने चली गई तो मैं भूल गई। तो ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से, मेरे डॉग की तरफ से शेयर कर रही हूँ मैं। और सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैं पहले भी बहुत सत्संगों में बोलती रहती हूँ, हालांकि मैं अपनी आइडेंटिटी मतलब डिस्क्लोज नहीं करती हूँ उसको, मतलब मैं अपना नाम वाम नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपना नाम बता के या सिटी बता के सत्संग शेयर किया करूँ। वो मैटर भी नहीं करता है मेरे हिसाब से, और मेरे कुछ अपने रीजंस हैं जिनके कारण मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो आज वैसे तो हर दिन ही चैलेंज है, क्योंकि मेरे घर में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी जो है वो आती है। नेगेटिविटी इन द सेंस, आई डोंट नो, वो ब्लैक मैजिक के कारण आती है या नज़र दोष के कारण आती है। क्योंकि चिढ़ने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। गुरुजी बहुत लोगों के नाम भी बताते हैं, और मतलब डिस्क्लोज भी किए हैं गुरुजी ने बहुत सारे लोग जो मेरी ज़िंदगी में हैं, मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले भी और जलने वाले भी। गुरुजी का तो ये कहना है कि कोई भी एक भी आदमी नहीं है जो कि तुम्हारी प्रोग्रेस देख के खुश होता है। मतलब मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ मैं कहीं। तो गुरुजी का कहना है कि एक भी आदमी नहीं है जो तुमको देख के, मतलब तुम हस्बैंड वाइफ को देख के या मतलब बच्चों को देख के कोई भी एक आदमी खुश है। और सबसे पहले जो है वो घर के लोग हैं, जैसे मेरे सास ससुर, मेरी ननद, सबसे पहले तो यही लोग जो हैं वो सत्संगों में मैंने सुना है और गुरुजी ने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक तो इनके थ्रू ही हमारे ऊपर किया जाता है। अब संगत जी, मुझे 2-3 महीने पहले भी ये चीज़ होती थी मुझे, कि मेरा जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड में मुझे एक जो नर्व है, नर्व में ना मुझे थोड़ी-सी बीच-बीच में मतलब ऐसे हल्की-सी दर्द उठती थी। आई डोंट नो, जब वो स्ट्रेस लेवल, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, तो आई डोंट नो वो स्ट्रेस के कारण हो जाता था या कभी-कभी जैसे होता है ना कि मतलब कभी आप टेंशन लेते हो या एंग्ज़ायटी करते हो, मे बी उसके कारण हो जाता था, या ब्लैक मैजिक छोड़ा जाता है उसके कारण होता है, आई डोंट नो। तो मैं 2-3 महीना पहले भी मैं क्या करती थी, थोड़ा-सा उसको गुरुजी का मंत्र जाप बोल के उस चीज़ को, मतलब उस एरिया को मैं एक हल्की सी मसाज दे लेती थी। तो वो ठीक हो गया था। ठीक हो गया था, उसके बाद मुझे क्या होता था कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना मेरे लेफ़्ट साइड में ही मैं फ़ील करती हूँ। जैसे लेफ़्ट साइड का जो हार्ट है उसमें दर्द फ़ील होगी हल्की-सी, या जो लेफ़्ट साइड की मेरी आर्म है वो कभी-कभी मुझे सुन लगेगी। और ये लेफ़्ट साइड में मुझे क्या होता था कि जैसे जो पूरा हमारा स्कल है, तो आधे स्कल में मुझे क्या होता था कि जैसे एक जगह पे जैसे जैसे कोई हमको पिन मारता है तो कैसे पेन होती है, तो मुझे ना एक बस पिंच सा मुझे लेफ्ट साइड में, मतलब जगह-जगह होता था। जैसे कभी यहाँ हुआ मान लो हेड पे, फिर कभी जैसे ब्रेन साइड में हुआ, जैसे ऐसा लगता है जैसे पिन जैसी चुभी, और ठीक हो गई। तो मैं क्या करती थी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोल के और गुरुजी का नाम लेके उस एरिया को जस्ट मैं हल्का-सा मसाज करके छोड़ देती हूँ। ये चीज़ मैंने डॉक्टर से डिस्कस की। और फिर आज मैं जब सुबह उठी, तो ऐसे हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है। मतलब कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, कभी एकदम से हस्बैंड अंकल को सिर में दर्द शुरू हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो सत्संग में मैं सुनती हूँ कि जो करने वाले हैं वो मेरे हस्बैंड के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करते हैं। और उन्होंने मेरी बेटी आंटी को, मेरे पति अंकल को सुना है मैंने कि वशीकरण करके रखा हुआ है, हम सबके ऊपर मारण क्रिया जो है वो की हुई है, ऐसा सुनने में आता है। अब कितना उसमें सच है कितना नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी जाने, उन्होंने सब देखना है, तो मुझे कुछ नहीं पता। तो आज सुबह भी पता क्या हो रहा था, मतलब बहुत देर तक, लेकिन मुझे आज ये होता रहा, लाइक कम से कम बड़ा नहीं तो 1-2 घंटे मैं अपने वर्क प्लेस में ही थी। तो मतलब तो मैंने, मतलब हर थोड़ी देर के बाद ना मुझे लेफ्ट साइड में एक नर्व में, नस में मुझे अंदर जैसे
पेन उठ रही थी लेफ्ट साइड में, थोड़ा आंख के ऊपर आईब्रो साइड में। तो मैं फिर पहले तो मैंने सोचा कि चल इसको मतलब मंत्र जाप नहीं बोलती हूँ, मतलब मैं फील करती हूँ कि मतलब क्या हो रहा है मुझे एग्जैक्टली, ताकि मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ और नोट कर पाऊँ, और मैं मतलब कभी अगर मुझे किसी को उस चीज़ को डिफाइन भी करना हो तो मैं बोल सकूँ कि क्या होता है। तो ना पहले तो मैं थोड़ी देर मैंने नहीं किया, पर फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है कि 100 चीज़ें हम सुनने को मिलते हैं, ये ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी को ये हो गया वो हो गया। तो अब ये जो यूट्यूब पे आप सत्संग देखते हो तो उसमें मैं भी सुनती रहती हूँ कि एक तो 4-5 दिन से मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे, अकाल मृत्यु का योग है, तुम्हारे घर में किसी को, फिर तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया की जाती है, तो जान का खतरा है, ये वो। तो मैंने फिर बाद में मन में सोचा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे मतलब यहीं वर्क प्लेस में मतलब मतलब कुछ हो जाए मुझे। तो मैंने ना उस एरिया को ऐसे धीरे धीरे मसाज करते हुए 7 बार मंत्र जाप बोल के मैंने उस एरिया को मसाज की। तो मुझे कम से कम बड़ा नहीं तो 2 घंटे तक वो चीज़ मुझे होती रही, वो नस में टक 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 करके ऐसे पेन जैसी उठती रही मुझे, जैसे हमको पस आती है तो कैसे वुंड में जब पस आती है तो होता है। तो ऐसे होता रहा, तो मैं मतलब 1-2 घंटे तक मैं भी बीच बीच में गुरु जी का नाम लेके बीच बीच में मंत्र जाप मैं बोलती रही। तो 2 घंटे में वो दर्द जो थी वो मेरी ठीक हो गई। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और एक ये चीज़ हुई, और तो एक और सत्संग है, लेकिन वो मैं अभी कल भी मुझे सत्संग करना है, तो उसमें मैं वो चीज़ बताऊंगी। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में किसी और का चेहरा भी दिखाया था जो ब्लैक मैजिक करता है, मतलब मेरे मायके साइड से मेरी एक कज़न का चेहरा दिखाया है मुझे, जिसने मतलब ये गुरुजी ने मुझे दिखाया था 3-4 दिन पहले। उसका चेहरा दिखा के गुरुजी ने दिखाया कि उसने बचपन में ही मेरा जो है वो कपड़ा काटा है। तो उसके लिए मैं एक अलग से सत्संग करूँगी, आज के सत्संग में तो मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी। तो मैं गुरुजी का इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने वो मेरी दर्द ठीक की, और आज का दिन मुझे ठीक रखा, मेरे परिवार को ठीक रखा, हम पाँचों को तंदुरुस्त रखा है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मेरे से ये सत्संग करवा देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरी तो कोई औकात नहीं है सत्संग करने की, ना मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं ये सब कर पाऊँ, भगवान का शुक्राना कर पाऊँ। तो गुरुजी इसी तरह से ये सेवा मेरे से करवाते रहे। और दूसरा क्या है कि गुरुजी ने आज के दिन में जो भी हमको अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए, अच्छा भोजन दिया, हमारी सांसें चलाई रखी, सुख से पूरा दिन जो है वो निकल गया। अगर ये मेरे लेफ्ट साइड में जो पेन है, अगर वो ब्लैक मैजिक के कारण भी अगर थ्रो की गई थी, क्योंकि अमृत वेला में आज सुबह मेरा सत्संग बोलना, वो मुझे लगता है वो ब्लैक मैजिक के कारण ही था कि मैं सत्संग भूल गई, अपना रूटीन छूट गया मतलब मेरा। तो होता कि जब आपके ऊपर ये सब क्रियाएं आती हैं ना, तो मैंने देखा है मेरा जैसे दिया मिस हो जाएगा, या फिर दिया करने को मेरा दिल ही नहीं करेगा, या फिर जो मेरे रूटीन है मतलब उनमें अड़चन आने लगती है, और इतना मेरी बॉडी में उस टाइम पे आलस आ जाता है कि मेरा ना करने को दिल नहीं करता है, और इतनी नेगेटिविटी घर में छा जाती है। तो ये गुरुजी ने मेरी दर्द ठीक की, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो भी अगर किसी ने भेजा था अगर, तो वो गुरुजी ने अपने हिसाब से उस चीज़ को काट के मुझे मतलब 1-2 घंटे में मेरी वो दर्द जो थी वो ठीक कर दी। तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, मैंने बोला गुरुजी क्या बोलते हैं, ऐसी छोटी छोटी दर्दें जो हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू आती हैं, तो मतलब कोई बात नहीं, आप हिम्मत दें कि उनको मैं सहन कर सकूं और उस पीरियड को मैं गो थ्रू कर लूं। हालांकि गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे तो मतलब कर्म ऐसे नहीं है जो तुम्हें झेलना पड़ता है, ये सारा जो तुम्हारी ज़िंदगियों में जो घटिया लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, नज़र लगाते हैं, उनके कारण तुमको ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ तुम्हारे कर्मों की सजाएं नहीं है ये। तो फिर भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी जो भी आता है इसको सहने की हिम्मत दें। बस एक ये मेहर करें, यही गुरुजी से मेरी अरदास है
कि घर में कभी भी कुछ बड़ा नुकसान ना हो, बस किसी को जानी नुकसान मत करना। मतलब इस तरह से हमारे साथ खड़े रहना कि हम पांचों को जानी नुकसान नहीं हो, क्योंकि जैसे मेरे पति के अंकल के पीछे भी ब्लैक मैजिक के कारण बहुत बड़ी बीमारी लगाई हुई है, जो कि गुरुजी ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनकी भी रक्षा करें। बाकी बच्चे मेरे अभी छोटे हैं, मतलब टीनेजर हैं, गुरुजी उनकी भी रक्षा करें। उनकी मुझे बहुत चिंता लगी रहती है। जब भी मैं ये ब्लैक मैजिक के मैसेज सुनती हूँ तो मेरे दिल में यही रहता है कि मतलब डर रहता है कि बच्चों को कुछ ना हो जाए, बच्चों को कुछ ना हो जाए, बच्चों को कहीं अकेले भेजने का डर, मतलब डर लगा रहता है। फिर घर में भी अकेले छोड़ के अगर आप काम पे भी जाओ तो भी डर लगा रहता है, क्योंकि आजकल तो 100 तरह के हादसे होते हैं। तो ऊपर से ये ब्लैक मैजिक और नज़र दोष का मेरे घर के ऊपर बहुत प्रकोप है। तो मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी कुछ ऐसा बड़ा नुकसान कभी प्लीज़ नहीं करना कि कोई जाने नुकसान नहीं हो मेरे घर में। थोड़े में मतलब खा लेंगे हम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या कुछ। जो आपने दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, बस वो बनाए रखना आप। और सबसे पहले नंबर वन पे हमारी जो हेल्थ है, उसके लिए मैं अरदास करती हूँ कि हम पांचों की हेल्थ सही रखें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी ब्लैक मैजिक आता है, छोटी छोट छोटा छोटा कष्ट है, अगर जैसे आज दर्द उठी आपने ठीक कर दी, ऐसा छोटे छोटे कष्ट के रूप में आप प्लीज़ काट देना। लेकिन कभी भी कोई बड़ा जानी नुकसान ना हो हम हस्बैंड वाइफ को या बच्चों को, या मेरे कभी कभी मेरे कुत्ते के ऊपर भी वो ब्लैक मैजिक का कष्ट आ जाता है। तो हम पांचों की रक्षा करना कि हम पांचों को जाने नुकसान ना हो, ये मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। और सबको, मेरे पूरे परिवार को सत्कर्मों पे चलाओ। ये तीनों आपको नहीं मानते हैं इतना, मैं ही आपसे जुड़ी हूँ, तो मेरे पूरे घर को अपने से जोड़ें। और मेरे घर से मेरे बच्चे जो चिकन वगैरह खाते हैं वो छुड़ाएं आप, उनको अपने भक्ति मार्ग पे चलाएं। पूजा पाठ की तरफ उनको मुझे पुश ना करना पड़े, वो अपने आप करें। पति अंकल को मेरी सद्बुद्धि दें, उनको अच्छे रास्ते पे चलाएं कि ताकि वो अपने घर का सोचें, उनका जो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है वो ख़त्म करें, ताकि वो अपने माँ बाप और बहन के चुंगल चंगुल से निकलें, उनकी रक्षा करें और उनकी आंखें खोलें और उनको असली चेहरे दिखाएं। कि जिस तरह से आपने मुझे चेहरे दिखाए और बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया, अभी आप धीरे धीरे लोगों को मेरे सपने में भी एक्सपोज कर रहे हो। जैसे मैंने अभी एक रिलेशन बताया मेरी मासी की लड़की का, तो वो लोग तो दूर दूर तक भी मेरे मतलब दिमाग में भी नहीं थे कि बचपन में उन्होंने ऐसा किया होगा। तो वो मैं देखती हूँ, मुझे अगर याद रही तो मैं कल ही सत्संग शेयर करूँगी थर्सडे को इस बारे में। तो यही गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी गंदे लोगों से हमें बचाए रखें, हम किसी का बुरा ना करें, ना बुरा करें ना सोचें। और बाकी चुगली निंदा इन सब चीज़ों से भी आप बचाए रखें। जब भी अगर कभी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इमिडिएटली आप स्टॉप किया करें। और वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे साथ अगर कोई किसी की निंदा करने भी लगता है तो मैं एकदम से मैं आपका नाम लेना शुरू कर देती हूँ अपने मन में, या तो फिर मैं उस जगह से या तो हट जाती हूँ या तो मैं बात बदलने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह से आप सत्कर्मों पे चलाएं। और मतलब मेरा जीवन जो है वो पूजा पाठ में लग सके और मेरे हाथों से दान पुण्य करवाएं आप। अब मैं देने वाली बनूं, मुझे किसी के हाथ की तरफ ना देखना पड़े, ऐसी जो है वो हमारे घर की आप स्थिति रखें। और बस आप साथ में रहें, आपने हाथ पकड़ना है, मेरे से तो पकड़ा नहीं जाएगा। और आपने रक्षा करनी है, आपने साथ में रहना है। ये घर आपका है और हम आपके घर में रहते हैं, तो ये घर आपका है, आपने ही हमें चलाना है। आप घर के सबसे बड़े हो गुरुजी, आपने ही ये घर चलाना है। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माता पिता भाई बहन दोस्त बंधु पति पत्नी जो भी जितने भी रिश्ते होते हैं दुनिया में, सिर्फ
आप में ही मैंने वो रिश्ते जो है वो ढूंढे हैं, क्योंकि दुनिया में मैंने बहुत सारे रिश्ते देख लिए हैं, कोई किसी का नहीं है। अभी जो थोड़ा बहुत मुझे लगाव है वो सिर्फ मेरे दोनों मतलब बच्चों के साथ रह गया है। बाकी दुनिया में तो बाकी मैंने हर रिश्ता देख लिया है। हालांकि आपने मुझे मेरी इतनी आंखें खोल दी हैं कि बच्चों से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपने इतना तक सिखा दिया है। लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे इन दोनों बच्चों की आप रक्षा करें और हमेशा इनके अंग संग रहें। अगर इनके बुरे कर्म हैं कोई तो प्लीज़ आप मुझे दे दें, हेल्प करें मुझे कि उन कर्मों को मैं काट सकूं। और इन बच्चों का हाथ पकड़ लें, इन बच्चों को अपने साथ आप लगा लें, अपने साथ जोड़ लें, अपनी भक्ति में लगा लें गुरुजी। और इसी तरह से आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें, मेहर रखें। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स दें। और कल मेरा फिर से शुक्राना सत्संग आप करवाएं। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारे संगत जी। पंजाब तो बोल रही हैं मैं। अपना शुक्राना गुरु जी दे सब रूप अगे बैठ के गा रही हैं। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलांगी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। अपने साडा हथ फड़िया तो लख लख कोटि कोटि शुक्राना। हर वक्त अपने बच्चों के नाल रहिंदे हो, अंग संग सहाय रहिंदे हो। अब तो लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना जी। तीनों टाइम खाने में देंदे आप तो लख लख कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। आप ही दे सहारे तुरे फिरते हैं। आप अंतर जामी है पल पल जान जान। कोई नहीं दुनिया च गुरु जी, कोई नहीं है, सिर्फ आप ही है सहारा। भी बच्चों को देखने वाले सब मतलब ही है गुरु जी। आपने हाथ फड़े अपने शरण च रखे। आप दा लख लख अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। आपने जेड़ा साडा फायदा उठांदे पे अपने मतलब लिए उन्हें तो दूर किता। ता लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी दे हाथ च जीवन दी डोर संगत जी। गुरु जी कहते बच्चे दी टेंशन ना ले, मैं बैठा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे देते हर पल दा शुक्राना, हर सुबास दा शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी। गुरु जी सानू पता भी नहीं लगा दंदे नेगेटिविटी गंदी गंदी चीज़ां दा। इन्ने बड़े बड़े कष्ट साढ़े तो घट दिंदे, सानू महसूस भी नहीं होन दिंदे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी दे टेलीपैथी मैसेज आंदा पिया सी कि तेरे पति ते कष्ट है, तेरे पति ते कष्ट है, एक्सीडेंट बहुत बड़ा होने वाला है। संगत जी पे मैं क्या गुरु जी आप ही देखो, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी फिर ना सवारी लेके गए संगत जी ते पहाड़ा वाल गए संगत जी ते आए मूत्र मैं क्या की होया। कहते कल बहुत बड़ा एक्सीडेंट होया। मैं ऊपर चढ़ता सी, ट्रक नीचे आंदा सी, उन्हें
2-3 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, आप बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हो, बहुत कृपा करने वाले हो संगत जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, माफ करो गुरु जी, माफ करो। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले हैं संगत जी। इसी दे नाल मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी, गुरुजी, जय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ, और गुरु जी के चरण कमल के सामने साझा कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संगत आंटी का ही है, एक किसी संगत आंटी का, जो मैं शेयर कर रही हूँ अपनी जुबा में।
तो मैं संगत आंटी बता रही थी, तो मैं उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूँगी। अगर मुझसे बोलने में या शुक्राना करने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना संगत जी, आप लोग भी। चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि तेरे घर में कुछ रखा हुआ है बोलकर, तो मैं सोचती थी किसी और के लिए होगा बोलकर मैं सब पे टाल देती थी। फिर एक बार कितने दिनों के बाद फिर आने लगा कि तेरे सोफे के नीचे कुछ चेक कर बोलकर मैं इग्नोर मार देती थी कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा बोलकर। तो फिर से गुरुजी महाराज का फिर से मैसेज आया कि बेटी सोफ़ा के नीचे चेक कर, कुछ तुझको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा बोलकर। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके, क्योंकि उतना एज भी हो गई है, तो मैं थोड़ा भारी सामान उठा नहीं पाती थी, इसलिए मैं इस कारण भी मैं इग्नोर करती थी। पर मैं आज हिम्मत जुटा के जैसे गुरुजी महाराज का मैसेज देखी तो मैं हिम्मत करके जैसे सोफ़ा को थोड़ा घिसका के ऐसे देखने लगी, तो मेरे सोफ़े के नीचे गुरुजी महाराज जो बता रहे थे कि तेरे सोफ़े के नीचे कुछ है जिसने तंत्र मंत्र करके रखा हुआ है। तो मैं ये हमेशा इग्नोर करती थी, तो मैं आज हिम्मत करके जैसे मैंने वो सोफ़ा, आज तो मैं देखना चाहती हूँ कि गुरुजी क्या बोलते हैं, सच में है कि नहीं बोलकर। मैं आज हिम्मत करके वो सोफ़ा जैसे मैंने हटाई तो मैंने देखा संगत जी कि एक कैंडल में एक ब्लैक सा धागा बांध कर किसी ने जलाई हुई थी, तो वो आधी जली हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने गौर से देखी तो जैसे कि मैंने उसको सोची थी कि शायद कि कोई कैंडल होगा बोलकर, वो कैंडल ही है। तो पर मैंने सोची थी ऐसे नॉर्मल कैंडल सोची थी। उसके बाद जब मैं गौर से उसको देखी तो उस कैंडल के ऊपर किसी ने ब्लैक धागा से पूरा बांध कर आधा जलाई हुई थी, जबकि मेरे घर में कोई कैंडल यूज भी नहीं करता है और वो ब्लैक धागा भी यूज़ नहीं करता है। तो ठीक उसी टाइम मैंने सब्जी वाली आई हुई थी, तो मैंने उनको भी दिखाई कि ये देखो इसका मतलब क्या है। तो वो सब्जी वाली भी बोली कि दीदी ये तो किसी ने तंत्र मंत्र करके जैसे चोटी बनाकर आधा जलाकर छोड़ दिए ऐसा लग रहा है। तो गुरुजी का जो मैसेज आया था तो मुझे याद भी हुआ, तो मैंने वो निकाल कर बाहर फेंक दिए। तो मैंने संगत आंटी को भी बोली थी कि ऐसा ऐसा मिला है मैंने, तो उन्होंने मुझे वीडियो प्रूफ के लिए वीडियो बनाने के लिए बोली थी, पर मैं इस बार वीडियो नहीं बना पाई। तो माफ़ करना गुरुजी, पता नहीं ये गुरुजी का ही होगा आदेश, क्योंकि जो भी करते हैं उन्हीं की मर्ज़ी से ही करते हैं हम लोग भी। तो उनका आदेश नहीं था शायद वो वीडियो बनाने का, इसलिए मेरा मन, जबकि मैं बनाऊंगी बोली थी, जब फेंकने टाइम में मुझे बनाने का मन ही नहीं हुआ। तो बस वो मैं शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी जो मैसेज करते हैं कि तेरे घर में ऐसा है, तेरे सोफे के नीचे ये है, तेरे घर में कुछ, वो कुछ ना कुछ हिंट होता ही है संगत जी। जैसे मेरे साथ हो गया कि मैं इग्नोर मारती थी, पर गुरुजी महाराज बता रहे थे कि तेरे घर में है, ढूंढ के देख। तो मैंने आज जब हिम्मत करके देखी तो मेरे सोफे के नीचे वो किसी ने तंत्र मंत्र करके कैंडल जलाकर पूरे ब्लैक धागे से आधा जलाकर छोड़ दिया था। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके मैसेज के इग्नोर करने के लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। और मैं सब संगतों को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जो मैसेज करते हैं वो ज़रूर हम लोग के लिए होता है, कुछ ना कुछ होता ही है संगत जी। जैसे मैं इग्नोर मारती थी पर मुझे भी मिला, ये जिसको अगर नहीं मिला वो तो एकदम भाग्यशाली है, क्योंकि गुरुजी महाराज उनको क्या पता वहाँ से तंत्र मंत्र हटा दिए होंगे। पर जिसको मिला है, गुरुजी शायद हम लोग का कर्म ही होगा कि वो हम लोग को ही हाथों से हटवाना होगा, इसलिए हम लोग को वो खुद से हटाना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर
संकट है तो अकाल मृत्यु का योग है बोल रहे थे, तो मैं डर रही थी। पर मैं गुरु जी को हमेशा बोलती थी कि सब परिवार का ख्याल रखना, अंग संग सहाय रहना। तो मैंने आज फिर से गुरु जी का मैसेज आया कि तेरा बेटा का बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, वो मैंने टाल दिया। शुक्र मना कि वो चीज़ नहीं हुआ, उसका शुक्राना ज़रूर करना। तो मैं उसी चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बड़े हादसा होने से टाल दिया। बारिश के थ्रू ही मेरे बेटे को घर पर ही रहने पर मजबूर कर दिया आपने, कुछ न कुछ बहाने से आपने उसको निकलने नहीं दिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, घर परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, घर में सुख समृद्धि सुख शांति बनाए रखने का शुक्राना, घर में बरकत ही बरकत देने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल के ड्रिंक छुड़ाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, बेटे को भाग्यशाली बनाने का शुक्राना, बेटे का फ्यूचर बनाने का शुक्राना। और गुरुजी बोलते भी हैं कि संगत जी कि बेटे का चिंता मत कर, उसको मैंने ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज जी। संगत जी, जो संगत आंटी ये सत्संग सुन रहे हो, गुरुजी उनके भी घर से ऐसे ही नेगेटिव दूर करे, ऐसे ही आपको हिंट मिले, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिले। और जो संगत आंटी मेरी ये सत्संग से करे, उनको भी गुरुजी हर बला से दूर रखे, हर चीज़ से नवाजे उनको भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।